So hello students, this is Venn diagram topic of class 11th. If you see this topic I think lot of students have listened about this topic in the beginning of the classes like 6th, 7th. The teachers discuss about something about Venn diagram because in Venn diagram they discuss about the integer, rational number, they represent the Venn diagram there. So what exactly is Venn diagram? Venn diagram is again a different technique to represent a set. That is why it is a part of set here. Initially there was a mathematician Euler who gave effort to represent a set with the help of points, right? And later on, John Venn give the contribution, and John Venn has given that there is a one rectangle which represent the universal set, and whatever the sets you will present here in U, they all will be the subset, and those subsets you will represent by circle. So this was the presentation which was given by John Venn, and Euler was the first one who just tried to build up this concept. So sometimes we call it Euler-Venn diagram because the main contribution goes to Venn. So sometimes we call it only Venn diagram, right? So this is there are two mathematicians for this approach. So now in Venn diagram, what we will study? We will study about the operations. How can we apply different operations on sets? Operations, my meaning is plus, minus, or any type of there are some type of difference. So how can we apply? Right, multiplication and division is not a part of this one. We are here to discuss about the plus or minus only. Right. So Euler and John Venn, this was the contribution by both of them. And before starting this one, how they are presenting the set. Suppose I am saying one set is A, right? Okay, I am making the Venn diagram here. Suppose this is what? This is universal set, and here suppose there is a two sets, and I am representing A set and B set. You can see there is a some part is common. So it means there are some elements of A and B which are common. This is the meaning of this figure. Suppose I am drawing a figure in which two circles are there, but they are not having any connection here. So what is the meaning of this? Means there is no common thing. They are called disjoint. Disjoint. Disjoint means completely different, and there is some common, right? So generally we work out on this particular part, right? Now I am coming to the point. First heading which I have written here also, first is called union of set. What is a union of set? Union of set, here you can see, let A and B be a two set, whatever like we have taken here in the figure. Union of set A and B is the set of all those elements which belongs to A or to B or to both of them, right? So what is the meaning of this? Union is representing by this. If I say in Venn diagram, then how can you represent? We will make two circles, and suppose they have some common thing also. Sometimes we can say that yes, they are not having anything common then, right? So in this case and in this case, okay, I am taking one example so that you will be able to understand. Suppose A is having 1, 2, 3, 4 and 5, right? And B is having 4, 5, 6, 7, 8, right? So it means 4 and 5 is the common in both,
and 6, 7, 8 I will write here in this circle. If suppose I am saying this is the set A, set A is containing suppose 1, 2, 3, and set B is having A, B, C. So it means now both are different disjoint sets, nothing is common. So 1, 2, 3 we will write here, A, B, C we will write here. So suppose I want to say what is A union B in this case. So A union B means we will write all the elements. We will write all the elements of set A and B. If I write all the elements of set A and B, so I will get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And no element, you know very well, no element will be repeated. It's a roster form. So what is the presentation? It is A union B. This is the symbol of union. Means we are just joining all the elements here. In this case, if I say, then this will be 1, 2, 3, A, B, C. So the meaning is here which belongs to A, which belongs to B, or to both of them. Right? Sometimes what happens, you know, the figure is like this. You know, one element, one set is a part of this. So A is having 1, 2, 3, 4, 5, and B is also having 1, 2, 3. So what is A union B in this case? We will write all elements, and we know very well B, all the elements of B are in A. So this also can be there. So here we are only taking an element of A. That is why we have written which belongs to A. Sometimes it can be which belongs to B. Sometimes we have to take both. So this is the presentation of A union B. Right? Now the next point about this one. Suppose I want to write in a different way, in a general way, then how can we write it? So A union B, I will represent it like this. A union B is equal to what? X is such that it's a set builder form, you know very well. So if X, you know, X is what? X is one element. If X belongs to A or X belongs to B, means या तो X A से belong करेगा या B से belong करेगा, और sometimes दोनों में से भी belong करेगा. दोनों means उनके common parts में belong कर सकते हैं. Right? जब common होगा तो दोनों में से एक से करना ही करना है वो. तो it means जब भी आपको union मिलेगा और आपको बोला जाए कि X belong करता है A union B से, तो you will write this one. X या तो A से belong करेगा या B से. यहाँ and नहीं रख सकते. राइट? यूनियन का मतलब यही है कि एक एक्स एलिमेंट है अगर ए यूनियन बी का, तो या तो वो ए से करेगा या बी से करेगा. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वो दोनों से करे, तो वो दोनों भी तो इसमें आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ दिखा तो दिया कि वो ए से बिलोंग करेगा या बी से. अगर वो कॉमन भी करेगा तो भी ए से या बी से करेगा. राइट? तो इसीलिए मैंने और यूज किया. अच्छा, एक्स अगर बिलोंग नहीं करता है यूनियन बी से, तो इसका मतलब क्या है? ना तो वो ए से बिलोंग कर रहा है, ना ही बी से कर रहा है, और ना ही उसके कॉमन से करेगा. तो इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ कि x a से भी बिलोंग नहीं करेगा एंड x विल नॉट बिलोंग टू b. एंड मींस कि आई एम डैम श्योर कि ना तो वो इससे करेगा और ना ही इससे करेगा. हियर कि या इससे करेगा या इससे करेगा. अगर इससे नहीं करेगा तो इससे करेगा, बट हियर कि इससे भी नहीं करेगा और इससे भी नहीं करेगा. तो एंड इज यूज फॉर श्योरिटी कि वो दोनों से ही कनेक्शन नहीं है उसका, या दोनों से ही कनेक्शन है. और मीन्स कि उसका एक से कनेक्शन है और दूसरे से नहीं, और दूसरे से है तो पहले से नहीं है. राइट? सो दिस इज द चॉइस, यू नो, दिस इज रिलेटेड टू द यूनियन पार्ट. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. ऑपोजिट ऑफ दिस, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सो व्हाट इज? अगेन सेम लैंग्वेज. In place of union you will write intersection, but in intersection what we will take? Intersection of set A and B is the set of all those common elements. So here let A and B be two sets, right? So intersection
of A and B is the set of all those common elements which belongs to both of them, जो दोनों से बिलोंग करते हैं, राइट. सो इट मीन्स अगर मैं इसको प्रेजेंटेशन इसका डालना चाहता हूं तो प्रेजेंटेशन क्या डलेगा, प्रेजेंटेशन ये डलेगा. दिस इज यूनिवर्सल सेट, आपने ये दिखाया, दिस इज ए, दिस इज बी. सो व्हाट इज द कॉमन रीजन, दिस वन. दिस विल रिप्रेजेंट A intersection B, right? This will represent A union B, right? So how will you represent it? A intersection B is equal to X is such that X belongs to A and, why we are using and here? Because it belongs to both, that is why it is intersection. ये दोनों से belong होना बहुत जरूरी है. And अगर ये अगर X बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B से, तो इसका मतलब है कि X A से भी बिलोंग करेगा और X B से भी बिलोंग करेगा. और अगर X बिलोंग नहीं करता है इससे, तो वो दोनों से ही बिलोंग नहीं करेगा. बिल्कुल सेम यही कंडीशन. नोट के लिए कोई चेंज नहीं है, राइट. सो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है. इंटरसेक्शन में बिल्कुल ध्यान रखना है, घबराना नहीं है. दोनों में बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि ये जो एंड और का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम का है, आगे काम आएगा बहुत जगह. आपको समझना पड़ेगा उसको, जो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझने में आपकी हेल्प करेगा, राइट. नाउ सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन को. This is A is equal to 1 2 3 4 5. You know, by this question ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि करना क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है. बहुत चीजें इसमें हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर. तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है हमारा ये. अगर मुझे A यूनियन B चाहिए, यूनियन क्या है, मीन्स सब एलिमेंट्स. मुझे A और B के सारे एलिमेंट्स डालने हैं, रिपीट कोई नहीं होगा, रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग. सो व्हाट विल बी आवर आंसर. अगर मैं A और B को पकड़ लेता हूँ, ए में यहाँ से 5 तक चले गए एलिमेंट, 5 तक लिख लेते हैं पहले. अब ये चेक कर लो कि और कोई एलिमेंट कॉमन वाला ना हो. इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, 4 5 दोनों में आ रहे हैं, हटा दो उसको. 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, आंसर आ गया. क्योंकि कॉमन क्यों लेंगे, दो बार रिपीट नहीं करेंगे. अब ए यूनियन सी पे आ जाते हैं. अगर मैं सी को पकड़ लेता हूँ, ये है 5 तक, ठीक है, तो इसको 5 तक लिख दो. इसके बाद आप देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स है. डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है. तो 7 8 9 10 एंड 11 सिंपल, सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए, ठीक है. अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, अब जैसे इंटरसेक्शन आ गया तो मेरा जो फोकस आएगा सिर्फ कौन से एलिमेंट्स पर आएगा, जो कॉमन होंगे दोनों में. अब कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपको सर्च करने पड़ेंगे. 1 2 3 इसमें है नहीं है, 4 5 आप देखो 4 5 इसके अंदर आ गया, तो इसका मतलब है सिर्फ 4 5 आंसर हो गया हमारा. तो सेट सिर्फ 4 5 का बनेगा, बाकी किसी का नहीं. अब यहाँ पर आते हैं, ये कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब मुझे तीनों का यूनियन चाहिए. तीनों का यूनियन मतलब कि मुझे सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, रिपीट कोई नहीं करना है. तो 4 5 तक मैंने किया, यहाँ 4 5 कॉमन था, नहीं लूंगा. उसमें 7 8 नहीं लूंगा क्योंकि 7 8 ऑलरेडी ले लिया है. बड़ा सिंपल है, घबराना नहीं है. 3 भाई यूनियन 4 का भी ले सकते हो, क्या प्रॉब्लम है. इसमें आ जाते हैं, इसमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. मतलब क्या कि सबसे पहले आप देखो, इसको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप एक काम करो, पहले ए का एलिमेंट लिख लो. ए के एलिमेंट आ गए ये, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद पहले ना जो ब्रैकेट है इसके एलिमेंट बना लो क्या क्या आएंगे. इसमें क्या कहता है बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स. तो क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8. 7 8 अभी नहीं लेंगे, 9 10 एंड 11. अब आप क्या करोगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढोगे. अब ये सोचो ये एक सेट है और ये एक सेट है. इस सेट में देखोगे 4 5 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा. तो आंसर क्या बन गया तुम्हारा, सिंपल सा है 4 5 बन गया, ठीक है. तो इसका मतलब है इसका और इसका आंसर
सेम आया इस पर्टिकुलर सम के लिए। इसमें आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कहता है कि पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, 4 5 निकलेगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 5, ये आ गया कॉमन। फिर इंटरसेक्शन लगा दो आप, फिर ये वाला ब्रैकेट देख लो, बी यूनियन सी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन सी में 7 और 8, तो यहाँ पर 7 और 8 आ गया। अब बताएं इसमें क्या इंटरसेक्शन है, इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5, एम्प्टी सेट है ये, ठीक है। तो इट मीन्स कि कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, इंटरसेक्शन यूनियन बड़ा इजी है कि आपको सिर्फ एलिमेंट्स को देखना है, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। 3 सेट दे दो 4 सेट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप, disjoint sets. I have discussed about it initially. Disjoint means which cannot be joined, which cannot be joined, you can say like this. Now suppose I am saying that there are two sets which are totally different, there is nothing common. If there is nothing common, so A intersection B will be 5. लास्ट एग्जाम्पल आपने देखा था, उसमें 5 आया था हमारा। तो अगर मुझे इसको प्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम में, तो सिंपल सा है कि मैं एक सर्कल बना दूंगा। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर बोल दिया सेट ऑफ, ये जो ए है ये सेट ऑफ वोवल्स है, एंड इसको बोल दिया ये सेट ऑफ इंटीजर्स है बी। तो इट मीन्स व्हाट इज कॉमन इन सेट ऑफ वोवल्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, नथिंग। सो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5। तो ए और बी क्या बन जाएंगे वहां पर, डिसजॉइंट सेट्स बन गए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जहां पर डिसजॉइंट देखने को मिलता है। चलिए नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? डिफरेंस मींस a माइनस बी या b माइनस ए। सपोज देयर आर टू सेट्स और मैंने बोला कि डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब सीधा मैथमेटिकली हम बात करेंगे a माइनस बी होता है जी b माइनस ए होता है। अब a माइनस बी का मतलब क्या है यहाँ पर? a माइनस बी का मतलब है कि मैंने b को माइनस किया है, तो b को माइनस करने का मतलब है कि मैंने b के वो एलिमेंट माइनस करे हैं जो a में आ रहे थे, जो a में आ रहे थे। तो इसका मतलब सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू a नॉट b। सिर्फ हम वो वाले एलिमेंट लेंगे अब a के जो सिर्फ a से ही बिलोंग करते हैं, b से ना करें। b माइनस ए क्या कह रहा है कि सिर्फ हमें b के एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ b से बिलोंग कर रहे हैं, अगर a से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो वो हम b वाले नहीं लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर होगा इससे। सपोज मैंने a की वैल्यू ले लिया जैसे 1 2 3 4 और ये 5, और b ले लिया है मैंने कि 4 5 6 7 8। अब मुझे निकालना है a माइनस बी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा भी इसमें कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 4 5 कॉमन है, तो इसका मतलब है जब मैं a माइनस बी करूंगा तो मैं a के कौन से एलिमेंट लूंगा जो सिर्फ a के ही हैं और किसी के ना हो। 1 2 3 इन वाले b के एलिमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है 6 7 8 से। सिर्फ मैंने कौन से एलिमेंट डिलीट किए, a के 4 5। क्यों किया? क्योंकि वो 4 5 b में भी थे, और माइनस ये कह रहा है कि b के एलिमेंट नहीं लेने हैं, राइट। अब b माइनस ए करना हो तो b माइनस ए करना हो तो मैं 4 5 हटा दूंगा, 6 7 8 लेना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि 4 5 यहां पर आ गया, क्योंकि मुझे a में a के एलिमेंट हटाने हैं ऐसे, तो मैं सिर्फ 6 7 8 को लेकर चलूंगा। ये चीज आ गया। अब सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है कि मुझे इसको अगर वेन डायग्राम में दिखाना हो, तो वेन डायग्राम में किस दिखाओगे आप? जैसे ये लिया a b, a माइनस बी का मतलब क्या? सिर्फ मैं ये लूंगा, कॉमन वाला पार्ट नहीं ले सकता। तो ये किसको प्रेजेंट करेगा? a माइनस बी को करेगा, राइट। सपोज b माइनस ए दिखाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये वाला कॉमन तो ले ही नहीं सकता, a ये है b, तो ये किसको प्रेजेंट करेगा? b माइनस ए को प्रेजेंट करेगा, ये u है यहाँ पर। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम एंड दैट वाज द एग्जांपल दैट यू हैव टू डू, राइट। नाउ दिस वाज द डिफरेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट a एंड b बी टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस को एक बार थोड़ा समझने की ट्राई करना, सिमेट्री, क्योंकि डिफरेंस हमने किया है थोड़ी देर पहले। सिमेट्री मतलब
कि सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री मतलब दोनों तरफ एक जैसा नेचर। अगर आप देखते हो मैंने क्या किया, मैंने दिखाया सिमेट्रिक डिफरेंस मींस a माइनस बी एंड b माइनस ए एंड द यूनियन। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, कि जितना जैसा आप इधर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो वैसा उधर भी है, सिमेट्री है उसकी। कि जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे आप, ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मिरर हो इसके आगे तो यहाँ पर मुझे b माइनस ए नजर आएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आया था सिमेट्रिक डिफरेंस करना क्या है। आपको a माइनस बी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, b माइनस ए कैसे निकालना है। इसका प्रेजेंटेशन होता है a डेल्टा b, इसको डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसको वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझना है तो वो एक बार को देख सकते हैं कि हमने ये बनाया, एक ये बनाया, दिस इज a, दिस इज b, राइट। अब मुझे क्या सपोज करना है, मुझे a माइनस बी दिखाना है। a माइनस बी कहाँ पर है अपना, a माइनस बी अभी मैंने बताया था आपको, ये वाला पार्ट जो कॉमन नहीं है। b माइनस ए कौन सा है, ये वाला पार्ट, मतलब जो कॉमन पार्ट है वही नहीं लेना। तो मीन्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये b माइनस ए को दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा, a माइनस बी को दिखाएगा। और मैं जब दोनों को साथ में ले लूंगा इसके एलिमेंट्स को तो वो क्या बन जाएगा, इसका यूनियन बन जाएगा, राइट। तो ये जो फिगर दिखेगी यहाँ पर, ये a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को दिखाएगी ये फिगर, राइट। इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू समझना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वेन डायग्राम्स। सपोज मैंने a लिया, a के एलिमेंट है 8 तक, इसमें एलिमेंट ये आए हुए हैं 1 3 5 6 7 8 9। अब मुझे a माइनस बी निकालना है। अब आपको a डेल्टा बी, सॉरी a डेल्टा बी निकालना है, पता है आपको a डेल्टा बी क्या होता है, ये दिखा दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, a माइनस बी क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं सेपरेट। a माइनस बी का मतलब क्या, a के सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो b में ना हो। अगर मैं बात करता हूँ पहले तो a और b में कॉमन एलिमेंट ढूंढो क्या है। आप देख रहे हो 3 है, उस पर सर्कल कर लेते हैं। और क्या है, 5 है, बिल्कुल है, 6 है, बिल्कुल है, 7 भी है, 8 भी है। तो अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4, मतलब 1 2 4 नहीं है इसके अंदर, 1 भी है, सॉरी 1 और ले लेते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं a में से b को माइनस करूंगा तो ये एलिमेंट तो मैं ले ही नहीं सकता अपने साथ। सिर्फ क्या क्या ले पाऊंगा, 2 और 4 ले सकता हूँ, क्योंकि ये उसमें भी है। तो वाले एलिमेंट जो b में है वो तो हम ले ही नहीं सकते a माइनस बी में। तो a के सिर्फ वो एलिमेंट लेंगे जो सिर्फ a के ही हैं, b माइनस ए में आ जाते हैं। b माइनस ए में उल्टा करेंगे, सिर्फ b के एलिमेंट लेंगे जो a में ना हो। तो वो क्या बचा हुआ, इसमें तो 9 ही है, राइट। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, a माइनस बी में कितने एलिमेंट है, 2 4। इसका यूनियन निकालना है। इसमें तो ये तो दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करें, यूनियन क्या कहता है, सारे लिख दो, ऑल एलिमेंट्स। सो आंसर क्या आ जाता है, 2 4 9। तो इस तरह से आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से हम वो दिखा रहे हैं कि वेन डायग्राम में उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर ये है, राइट। नाउ नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट इज कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पर ये टाइप ऑफ सेट्स वाला जो बात कर रहे थे वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, complement word we have used in angles, but here angle actually conceptually it is correct। जैसे आप कहते थे 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप क्या करते थे, 90 माइनस 30 करते थे। क्या कर रहे थे वहां पर, एक्चुअली 90 हमारे लिए कंपैरेटिव था, एक कंपैरेटिव नंबर था जहां से कंपैरिजन हो रहा था, राइट। कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा था विद 90। तो 90 को हमने स्टैंडर्ड मान लिया था, राइट। और सप्लीमेंट के लिए हमने 180 को मान लिया था। तो जब भी हम सेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो हम U मान के चलते हैं, यूनिवर्सल से, कि लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A कोई सेट है। अगर A ऑब्वियसली बात है उसका सबसेट ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब ये है कि सब कुछ उसके अंदर है। तो जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, मुझे उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं उसको पहले A डैश या A C से डिनोट कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से। तो इसका मतलब है क्या, एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ही है।
मैं अगर बात करता हूँ तो अगर मुझे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि अगर वेन डायग्राम की हेल्प से समझने की ट्राई करेंगे, अगर ये ए है और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए को छोड़ दो, बाकी सब जो बाहर वाला है ये राइट, ये सब ए डैश है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो हमारे लिए ये 90 डिग्री का काम कर रहा है और ये एक एंगल है, तो 90 माइनस 30 टाइप और वट एवर यू आर पुटिंग है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर देंगे हम, ये वाला सेट माइनस कर देंगे, बाकी सब ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू u, करेगा ही करेगा वो, तो u का तो पार्ट है ही है, एंड बट x डज नॉट बिलोंग टू a, राइट। एंड इफ x बिलोंग्स टू a डैश, मतलब x अगर कॉम्प्लीमेंट का है, मतलब यहाँ पर एक नंबर है 1, अगर वो यहाँ पर है तो वो यहाँ नहीं हो सकता, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं तब और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सपोज आपने बोला एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें एलिमेंट ले लेते हैं 10 तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। एक ए है उसमें एलिमेंट आ जाते हैं 5 तक और मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, तो u के वही एलिमेंट लूंगा जो a में नहीं है, तो इसका मतलब है 5 तक तो मैं ले ही नहीं सकता। क्या ले लूंगा फिर मैं, 6 7 8 9 10, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट छोड़कर बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंडर में चले जाएंगे, राइट। तो ये था वेन डायग्राम से रिलेटेड पार्ट। आई होप समझ में सबको आ गया होगा और बहुत ही इजी तरीके से करना है, बिल्कुल कूल माइंड होकर। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप देखते हैं एक्सरसाइज वाला पार्ट, एक्सरसाइज 1.4, तो एक्सरसाइज 1.4 में या तो हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज के लिए एक अलग से वीडियो बना देते हैं जिससे वो सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.5 ये दोनों एक साथ ही हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही वेन डायग्राम के पार्ट है, राइट। तो क्लास in the next video we will see that one. So thank you so much for watching this video.